إن الحمد لله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. برادران اسلام، پردہ نشین، عزت دار خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و کبریائی، بزرگی و حمد و ثنا، عزت و جلالت، شان و شوکت صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو کہ میرے اور آپ کا تنے تنہا خالق، مالک، رازق، پالنہار اور مدبر بھی ہے. اس کے بعد درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء اکرام پر، خاص کر میرے اور آپ کے آخری نبی رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین سید ولد آدم آمینہ کے لال، میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بھائیو، میں اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، مجھے اور آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس زمین پر نیکی کے کام کرنے، برے کاموں سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اگر فرما برداری ہم کر لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی اگر میں اور آپ دنیا کے اندر اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو میں سمجھ لیجئے کہ میں اور آپ کامیاب ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو بندہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا. جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے
उसके रसूल की नाफरमानी करता है, गुनाहों के काम दुनिया के अंदर करता है, वमन यअसिल्लाह व रसूलहू फक़द ضل ضلالا بعيدا, जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है, उसके रसूल की नाफरमानी करता है, दुनिया के अंदर गुनाह के काम करता है, ऐसे काम करता है जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को नापसंद है, तो समझ लीजिए कि वो बंदा खुली गुमराही में, खुली गुमराही में। तो भाइयों, ये गुनाह किसको कहते हैं? आम अगर जबान में कहा जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी को नेकी कहते हैं। अल्लाह और उसके रसूल की जिस भी चीज में, जो भी काम में नाफरमानी हो रही है, वो खुली बात है कि वो गुनाह है। हजरत नवास इब्न समआन रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जरा हमें समझाइए कि नेकी किसको कहते हैं और गुनाह किसको कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जवाब देते हुए, उनको समझाते हुए कहते हैं, अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क, नेकी किसका नाम है? हुस्न अखलाक का नाम नेकी है। वल इस्मु मा हाका फी सदरिका व करिहता अन यत्तलिया अलैहि नास, और गुनाह किसको कहते हैं कि जो भी काम आप करने जा रहे हो और उसके ताल्लुक से आपके दिल के अंदर खटके कि भाई हम जो काम कर रहे हैं, जो काम करने हम जा रहे हैं, जिस काम को अंजाम देने के लिए हम जा रहे हैं, उसके ताल्लुक से हमारे दिल के अंदर खटक पैदा हो कि भाई ये काम सही है कि गलत है, उसको गुनाह कहते हैं, उसको गुनाह कहते हैं। लेकिन आज माशरे के अंदर सारे लोग गुनाह को नेकी की तरह आम तौर पर करते जा रहे हैं। गुनाह को गुनाह समझकर कोई भी काम नहीं कर रहा है। गुनाह को सारे लोगों के सामने फख्र के साथ आदमी कर रहा है। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुहाजिरीन। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन सब लोगों को माफ फरमाएगा, सब लोगों को माफ फरमाएगा, लेकिन उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो गुनाह खुल्लम खुल्ला करता है। जो आदमी सब लोगों के सामने, सारे कायनात के सामने खुल्लम खुल्ला जो बंदा गुनाह का काम करता है, ऐसे आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी माफ नहीं करेगा, कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी को माफ नहीं करेगा। आज देखिए, बंदा जब रात को गुनाह करता है, जब बंदा रात को गुनाह करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह पर पर्दा डालता है। क्या डालता है? पर्दा डाल देता है। मतलब क्या? माफ कर देता है। लेकिन जब सुबह में आकर वो आदमी चार लोगों के सामने गुनाह के काम को बड़े इसके तरीके से, फख्र के तरीके से आकर कहता है कि मैंने फलां काम किया, मैंने रात में कल फिल्म देखी है, आप भी देखो, मैं कल रात में चोरी किया, कोई भी नहीं देखा, आदमियों के सामने, चार लोगों के सामने आकर जब कहता है ना, खुल्ला जब आकर लोगों के सामने पेश करता है ना, ऐसे आदमी के गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला कभी भी माफ नहीं करता। ऐसे आदमी के गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला कभी भी माफ नहीं करता। देखिए, अब जब गुनाह करता है आदमी तो उसके दिल के अंदर खटक पैदा होती है। ठीक है, वो खटक कब पैदा होती है? उसका ईमान ताजा हो। आदमी के अंदर अगर ईमान है, जितना ज्यादा आदमी के दिल के अंदर ईमान होगा, उतना ज्यादा आदमी गुनाह करने से खटकेगा। देखिए, कोई कंपनी के अंदर कोई आदमी काम कर रहा है, मुलाजिमत कर रहा है। अब वो आदमी, उसका काम है काम करना। अब वो आदमी काम करने के बजाय कुछ दूसरे कामों में मशगूल है। अब वो आदमी को डर पैदा होता है, उसके दिल के अंदर एक किस्म की अजीब कैफियत पैदा हो जाती है कि अगर मैं ये काम को छोड़कर दूसरा काम कर रहा हूं, मेरा मालिक आ जाएगा, देखता बार बार देखता रहेगा, मेरा मालिक आया नहीं आया, बार बार देखता रहेगा। उसके दिल के अंदर एक किस्म की खटक पैदा होती है। ठीक इसी तरीके से हर बंदे को चाहिए कि गुनाह करने से पहले उस आदमी के, मोमिन बंदे के दिल के अंदर खटक पैदा होती है कि मैं काम जो कर रहा हूं ये सही है कि गलत है, मैं जो काम कर रहा हूं क्या ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी वाला काम है कि नाराजगी वाला काम है। क्योंकि जो भी गुनाह का काम होता है ना, शैतान उस गुनाह के काम को बड़े खूबसूरत अंदाज में लाकर पेश करता है।
ایسا لا کر پیش کرتا ہے کہ وہ آدمی اس کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ گناہ نہیں ہے. کیسے؟ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو دونوں کو جنت کے اندر رکھا تھا اور ان دونوں کو یہ نصیحت کی گئی تھی کہ آپ اس درخت کے قریب تک مت جائیں. اب شیطان آیا, وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, ان دونوں کے پاس آ کر ان کو ایسے نیکی کو ایسا پیش کر, اللہ کی قسم کھاتا ہے آ کر. وَقَاسَمَهُمَا, جب اللہ والوں کے سامنے جب اللہ رب العالمین کی قسم کھائی جاتی ہے تو اللہ والے بھی شیطان کے شیشے میں آ جاتے ہیں, شیطان کی بات مان لیتے ہیں. یہاں پر قسم کھائی گئی, اللہ کی قسم کھا کر ان کو بات کر کے آ کر ان کو وہاں پر لے کر گیا, قسم اللہ رب العالمین کی کھائی. تو شیطان کیا کرتا ہے, اچھے سے اچھے جتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ کو بھی کیا ہے بڑے خوبصورت انداز میں اچھے انداز میں لا کر پیش کرتا ہے. شیطان اس کا متوالا بن جاتا ہے, انسان شیطان کے شیشے میں آ جاتا ہے, انسان شیطان کی بات مان کر اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے, کیونکہ شیطان اللہ رب العالمین سے وعدہ کر کے آیا ہے, اے اللہ میں تیرے بندے کو اس کے سامنے جب گناہ کو پیش کروں گا تو کیسے پیش کروں گا, اچھے انداز میں. ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین, اے اللہ میں تیرے بندے کے سامنے جب کوئی گناہ کے کام کرنے پر آمادہ کروں گا تو بڑے اچھے انداز میں اس کو سامنے میں گناہ کو رکھوں گا, تو آٹومیٹک بندہ کیا ہو جائے گا, اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا, شیطان کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا. ہوتا ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہو رہا ہے دنیا کے اندر. آدمی سود خوری کو عام سمجھا ہے, سود خور ہر کوئی 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا آدمی بھی سود لینے پر, بیاج لینے پر, وڈی لینے پر مجبور ہے. کیا عام ہو گیا ہے, ہر آدمی لے رہا ہے, میں بھی لے رہا ہوں, وہ بھی کر رہا ہے, میں بھی کر رہا ہوں, کھلے عام ہو گیا ہے. حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے, ہم سب کو معلوم ہے, اس کے باوجود بھی ہر کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر کے اندر سود نہ ہو. ہر آدمی سود لینے پر مجبور ہے, سود کھانے پر مجبور ہے. یہ ایسی گناہیں بہت سارے عام ہیں, لیکن یہ کس کی طرف سے ہے, یہ شیطان کی طرف سے ہے. یہ ساری چیزیں شیطان کا کھیل ہے, ہم کو معلوم ہے. اس کے باوجود بھی ہم شیطان کے چنگل میں گر جا رہے ہیں. دیکھیے بھائیو, گناہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دیتا ہے یقیناً, آخرت میں تو اس کی سزا ہونی ہے, لیکن دنیا کے اندر بھی کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں. دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو خسارے کے اندر مبتلا کرتا ہے. تو گناہ کی وجہ سے انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اس میں سے سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم تمام لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک ایک نقطہ پیدا ہو جاتا ہے. جب انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ بندہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے, تو گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دھو دیتا ہے. اگر بندہ گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے, توبہ نہیں کرتا, اس کو توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے, تو اس کا دل کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. انسان کا مکمل پورے کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہوا, جو بھی بندہ گنہگار ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. کتنی بھی حدیثیں اس کو سناؤ, کتنی بھی قرآن کے واقعات اس کو سناؤ, قرآن کی آیتیں پڑھ کر اس کو سناؤ, قبر کے عذاب کے بارے میں اس کے سامنے ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات اس کے سامنے رکھو, ایک کان سے سنے گا, دوسرے کان سے نکالتا جائے گا. کیوں؟ گناہ اس کے لیے آسان ہو گیا ہے. گناہ اتنے کیا ہے, اتنے گناہ کے کام کیا ہے, اتنے زیادہ گناہ کے کام کیا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو گیا ہے, اس کا پورا دل کالا ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے نیکی کی کوئی بھی بات اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے. بھائیو, گناہوں کی کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی پر ایک اور اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی نگاہ میں گر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوتی.
देखिए, हम दुनिया के अंदर कोई अगर बड़ा मौलवी साहब आए, बड़े आलिम साहब आए, तो उनके सामने बात करने के लिए उर्दू नहीं भी आई तो अच्छी जबान में बात करने की कोशिश करते। अगर कोई बड़ा आदमी आ रहा है तो उसके पास बात करने के लिए लोग बोलते हैं कि भाई उसके पास जरा संभल कर बात करो, उससे जरा संभल कर बात करो, बड़ा आदमी है। अगर तेरी बातों में कोई भी जबान फिसल कर कोई बात कह दिया तो वो नाराज हो जाता है। कहते हैं ये दुनिया का मामला है। अब जब वो जात जो मुझे और आपको पैदा की है, उस जात को मुझे और आपको खुश करना है, हम उस जात की नाफरमानी करते हैं। जब हम गुनाह करते हैं तो हमारी अल्लाह तबारक व तआला के सामने कोई भी हैसियत नहीं होगी। जो बंदा गुनाह करेगा, अल्लाह तबारक व तआला की नजरों से वो आदमी गिर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की नजरों से वो आदमी गिर जाएगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी नजर रहमत से उस आदमी की तरफ नहीं देखेगा जो बंदा गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह करते जाता है। वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुक्रिम, जिस आदमी को अल्लाह तबारक व तआला जलील करेगा, जिस आदमी को अल्लाह तबारक व तआला रुस्वा करेगा, उसको कोई भी इज्जत नहीं दे सकता। दे सकता कोई इज्जत? कोई इज्जत दे सकता है? अल्लाह तबारक व तआला जिसको इज्जत से नवाजना चाहेगा उसे को नवाजेगा। जिस आदमी को अल्लाह तबारक व तआला जलील करेगा, रुस्वा करेगा, जलील व खाल करेगा, उस आदमी को कौन इज्जत दे सकता है? इज्जत देने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की जात है। अगर हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इज्जत मिलना है, हम अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदे बनना चाहते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम गुनाहों से बचें। गुनाह छोटे भी हों, बड़े हों, गुनाहों के कई सारे असरात इंसान की उसकी अपनी जिंदगी पर भी आते हैं और सारी कौम पर भी आते हैं। सारी कौम पर भी आते हैं। कैसे? देखिए, दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरह बंदे को तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला करता है। किस्म किस्म की मुसीबतें, परेशानियां, हर ऐसी किस्म की ऐसी परेशानियों के अंदर इंसान फंस जाता है कि वो सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। जो भी फसादात दुनिया के अंदर जो पैदा हो रहे हैं ना, वो सारी की सारे फसादात की वजह क्या है? बिमा कसबत ऐदिन नास। ऐ लोगों, तुम्हारे अपनी करतूतों की वजह से है, तुम्हारे गुनाहों की वजह से है, तुम्हारे गलत अंजाम और गलत रवैये की वजह से आज दुनिया के अंदर तरह तरह के अजाबात अल्लाह रब्बुल आलमीन के दुनिया के अंदर रुनुमा हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कई जगह सैलाब आ रहे हैं। देखिए, कई जगह ऐसे हैं जहां पर बारिश ज्यादा होने की वजह से, तूफान ज्यादा होने की वजह से कई लोगों के घर तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, कई लोगों की जमीनें, फसलें तबाह और बर्बाद हो रही हैं। तो कहीं बिल्कुल बारिश ना होने की वजह से, कई लोगों की खेतियां बर्बाद हो रही हैं। क्यों? हमारे अपने गुनाहों की वजह से। आज हर घर के अंदर पानी का बोर है, हर घर के अंदर पानी का बोर है, हर खेत में पानी है। उसके बावजूद भी आदमी पानी के लिए तड़प रहा है, उसके बावजूद भी आदमी पानी के लिए तड़प रहा है, आदमी बारिश के लिए तड़प रहा है। क्यों? इसलिए हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बारिश को रोके रखा है। भाइयों, ये जो बारिश कभी कभार हो रही है ना, किस लिए हो रही है? कभी कभार अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत नाजिल फरमाता है, बारिश नाजिल फरमाता है। क्यों नाजिल फरमाता है? ये जानवर जो है ना, इन जानवरों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको बारिश नाजिल फरमा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौलल बहाइम लम युमतिरू। अगर ये जानवर ना होते ना दुनिया के अंदर, तो आपको हरगिज़ बारिश नहीं होती, आपको अल्लाह तबारक व तआला बारिश ही नाज़िल नहीं फरमाता। उनकी वजह से, उनकी सूरत देखकर, उन लोगों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बारिश नाज़िल फरमा रहा है। वरना आज कब का दुनिया खत्म हो गई होती। हमारे गुनाह इतने हैं, हमारे बदआमालियां इतने हैं, हमारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियां इतनी है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो बारिश नाज़िल नहीं फरमा सकता। लेकिन इन जानवरों की वजह से हम पर भी क्या है, बारिश जो उतर रही है उसका फायदा हम भी उठा रहे हैं, उतना दूसरा कुछ भी नहीं है। भाइयों, गुनाह की वजह से इंसानी जिंदगी के अंदर एक बड़ा नुकसान क्या होता है? अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी को इल्म से महरूम करता है।
किससे महरूम करता है? इल्म से महरूम करता है। आदमी रात दिन पढ़ता है, मेहनत करता है, उसके बाद भी फेल हो जाता है। कुछ लोग हैं कुरान मजीद को याद करते हैं, उसके बावजूद भी उनके दिमागों के अंदर वो बात कुरान मजीद की आयतें याद नहीं होती हैं। लोग आकर कहते हैं मौलाना कुछ ऐसी दुआ बताओ कि मेरा बच्चा फुल पढ़ रहा है, उसके बावजूद भी मेरे बच्चे के दिमाग के अंदर वो बातें घुस नहीं रही है, क्या करें? गुनाहों से बचें। इमाम शाफई रहमहुल्लाह उनके अपने उस्ताद के पास जाते हैं, उनका नाम वकी बिन जर्राह था। जाकर कहते हैं शकौतु इला वकीई, जाकर शिकायत करते हैं सुआ हिफ्ज़ी। कौन सी शिकायत? कि मैं जो कुछ पढ़ रहा हूं, याद कर रहा हूं, उसके बाद भी मेरे दिल के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर ये बात नहीं चल रही है। मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मैं याद कर रहा हूं, उसके बावजूद भी ये चीज मेरे दिमाग के अंदर बैठ नहीं पा रही है। तो उनको क्या नसीहत करते हैं? फ़अौसानी इला तर्किल मआसी, फ़अौसानी इला तर्किल मआसी। उनके उस्ताद इमाम शाफई हालांकि बहुत बड़े इमाम हैं, वो इमाम जाकर अपने उस्ताद के पास कहता है कि मैं कुल ज़हन हूं, मेरे दिमाग के अंदर कोई भी बात चढ़ती नहीं है। तो उनको नसीहत करते हुए कहते हैं आप गुनाह के काम को छोड़ दो, आप गुनाह को छोड़ दो तो ऑटोमेटिक आपको अल्लाह तबारक व तआला का इल्म हासिल हो जाएगा, इल्म आपको आ जाएगा। अगर आप गुनाह पर गुनाह करते जाएंगे तो यकीनन आप इल्म से महरूम हो जाएंगे, इल्म से दूर हो जाएंगे। अखबरनी बि अन्नल इल्म नूरुन, आगे कहते हैं कि याद रखो ये इल्म नूर है। इल्म क्या है? नूर है। वो नूरुल्लाहि ला युता लिआसी, अल्लाह तबारक व तआला गुनहगार को इल्म नहीं देता, अल्लाह तबारक व तआला गुनहगार को इल्म नहीं देता, गुनहगार को इल्म से नहीं नवाजता। जो बंदा गुनाह से पाक होता है, गुनाह से बचने की कोशिश करता है, गुनाह से दूर होता है, उस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला इल्म से नवाजता है, उस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला इल्म से नवाजता है। जो बंदा गुनाह पर गुनाह करता जाता है, ऐसे आदमी को इल्म हासिल नहीं होता। जो बंदा गुनाह पर गुनाह करते जाता है, उसका एक नुकसान ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से रोजी को छीन लेता है, रिज़्क़ को छीन लेता है। अब लोग कहते हैं कि भाई कैसा छीन लेता? अल्लाह तबारक व तआला हमारी तकदीर में, हमारी नसीब में, हमारी किस्मत में कितना लिखकर है उतना रिज़्क़ मिलना ही है। अगर हम गुनाह करेंगे, अगर हम गुनाह पर गुनाह करते जाएंगे तो हमारी किस्मत में, हमारी तकदीर में जो रिज़्क़ लिखा हुआ था, उस रिज़्क़ को भी हमारी गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला छीन लेगा। आदमी परेशान फिरेगा। कई लोग ऐसे हैं जो 10-10 साल 12-12 साल एक ही कंपनी में काम करे, अचानक किसी भी वजह से या तो कंपनी निकल गई या तो उसको उस कंपनी से निकाला गया। आदमी अब मारा फिरता है कि मुझे रोजगार नहीं है, मुझे यहां पर। देखिए आज कई लोग हैं रोजगार की तलाश में लाइनों में लगे हुए हैं। लोग रोजगार तलाश करने के लिए, रोजगार खाने के लिए, रोजी और रोटी कमाने के लिए आज लोग क्या है, बाजारों में आप देख सकते हैं लाइन लोगों की लगी हुई है, लाइन लोगों की लगी हुई है। अगर हम हमारे गुनाह को कम करते जाएंगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारी रोजी और रोटी में बरकत अता करेगा। एक शख्स एक गरीब आदमी के घर पर सदक़े की वजह से सदक़े का कुछ माल ले जाकर उनके घर पर जाता है। घर पर जाकर खटखटाता है। जैसे ही दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खोलता है तो उस घर के अंदर से गाने बजाने की आवाज आती है, गाने बजाने की आवाज आती है। वो आदमी सोचता है भाई जिस घर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की जा रही है, जो घर वाले गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं, ऐसे घर के अंदर मैं सदक़े के माल क्यों दूं? वो आदमी वापस लेकर जाता है, वो आदमी वापस लेकर जाता है। देखिए रोजी हमारे दरवाजे तक आई थी, हमारे दरवाजे तक आकर वापस चली गई। क्यों? हमारे दरवाजे तक, हमारे सामने रोजी है लेकिन हमको मिल नहीं पा रही है। क्यों? हमारे गुनाह की वजह से। अगर हम गुनाह पर गुनाह करते जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला रोजी नहीं देगा, जिंदगी तंग हो जाएगी, जिंदगी तंग हो जाएगी। इंसान
बेचैन हो जाएगा। इंसान की जिंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला सुकून और आफियत कभी भी नहीं रखेगा। वमन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। वमन आरदा अन जिक्री, जो बंदा मेरी नाफरमानी करता है, मेरी फरमाबरदारी नहीं करता है, अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दंका, मैं उसकी जिंदगी को तंग कर दूंगा। अल्लाह कहता है मैं उसकी जिंदगी को तंग कर दूंगा। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र को भी तंग कर देता है। मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, और क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को क्या बनाकर उठाता है? अंधा बनाकर उठाता है। अब वो आदमी जब अंधा बनकर उठता है तो अल्लाह से कहता है क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा, अल्लाह दुनिया के अंदर मुझे बसारत दिया था, मैं देखने वाला था, मुझे तो आज यहाँ पर क्यों तू मुझे अंधा बनाकर उठाया है? लिमा हशरतनी अमा, अल्लाह मुझे अंधा बनाकर क्यों उठाया है? क़ाला, अल्लाह कहता है कज़ालिकल यौम तुनसा, जो बंदा गुनाह का काम करता है, रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है, मासियत करता है, ऐसे आदमी को हम ऐसे ही आजाब देंगे, ऐसे ही आजाब में हम मुब्तला करेंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है। तो भाइयों, हमको चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जिंदगी दिया है उसको गनीमत समझें। जो उम्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको दी है उसको गनीमत समझे, उसको गनीमत समझकर अब भी हमारे पास वक्त है, जब भी वक्त मिले फौरन हमारे गुनाहों की तौबा करें। अल्लाह तबारक व तआला गफूरुर रहीम है। जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूरुर रहीम है, गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। अब लोग कहते हैं अल्लाह गफूरुर रहीम है, गुनाह पर गुनाह करते जा, क्या भाई गुनाह कर रहा है जरा हट जा। नहीं, अल्लाह माफ फरमाने वाला है, अल्लाह गफूरुर रहीम है। जहां पर अल्लाह तबारक व तआला गफूरुर रहीम है, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला शदीदुल इक़ाब भी है, सख्त से सख्त सजा देने वाला भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ एक मर्तबा आ जाएगी तो फिर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकेगा। देखिए, गुनाह करने की वजह से इंसान के अंदर से शर्म हया खत्म हो जाती है, बेहयाई आम हो जाती है। क्या होता है? बेहयाई आम होती है। आज पूरी आप देख लीजिए, बेहयाई हर जगह आम है। खास बाप अपनी बच्ची को वीडियो बनाकर कहता है कि तू डांस कर, ले जाकर उसको ग्रुपों में डालता है, लोगों को बताता है कि देखिए मेरी बच्ची डांस कर रही है, मेरी बच्ची फलां गाने पर नाच रही है। बाप इजाजत दे रहा है अपनी बेटी को कि बेटी तू नाच, सारे लोगों को बताता है, सारे खानदान वालों को बड़े फख्र से बताता है कि मेरी बच्ची ऐसा कर रही है। देखिए, ऐसा बता रहा है भैया क्या इनकी बच्ची नेकी के काम कर रही है, इनकी बच्ची कुरान मजीद पढ़ रही है, इनकी बच्ची नेकी का काम कर रही है, ऐसा बताते हैं। बाप इजाजत दे रहा है। बाप को चाहिए कि अपने औलाद पर नजर रखे, वालिदैन माँ और बाप को दोनों को चाहिए कि अपने बच्चों पर नजर रखें। बाहर भी अगर उनकी बच्ची जा रही है तो पर्दे का एहतमाम करने की तलकीन करें, अपने बच्चों और बच्चियों को पर्दे के साथ भेजें, अपने बच्चियों को बुर्का पहना कर भेजें, अभी से तरबियत दें। बच्ची जब से छोटी है तभी से तरबियत दें। अपने बच्चियों को बताएं कि पर्दा किसको कहते हैं, महरिम और ना महरिम क्या है, कहां पर कैसा जाना है। हम अपने बच्चों को भी से तरबियत सिखाएं। नहीं, बाप खुद कहता है, बाप वीडियो निकालता है, बेटी नाचती है और सारे लोगों में फेसबुक में वहां पर फला 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 डालकर उसको ये कर देता है। बेहयाई आम हो जाती है। बेहयाई इसी वजह से आम हो जाती है, हमारे अपने गुनाहों की वजह से आज बेहयाई आम है। शर्मो हया खत्म हो गई है, शर्मो हया नहीं है, शर्मो हया मुकम्मल खत्म हो गई है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा लम तस्तही फस्ना बिमा शिता, जब आपके अंदर से शर्म हया खत्म हो गई है ना, तो फिर आप जो चाहे कर सकते हैं। वही हो रहा है, वही हो रहा है। तो भाइयों, जो बंदा गुनाहों पर गुनाह का काम करते जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी को बेचैन कर देता है, उसकी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं मिलता, उसकी जिंदगी के अंदर कभी भी सुकून नहीं मिलता। अल्लाह तबारक व तआला उसके सुकून को खींच लेता है। देखिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु नेकी के 5 फायदे, 5 फवाइद गिनाए। सबसे पहला फायदा नेकी का यह होता है कि दियाउन फिल वजह, नेकी जो बंदा करता है ना उसके चेहरे पर रोशनी आती है, उसका चेहरा चमक जाता है, उसका चेहरा चमक जाता है। उसके बाद वो नूरन फिल क़ल्बी, और उसका दिल मुनव्वर हो जाता है, रोशन हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे को और उसके दिल को रोशन करता है। उन दोनों को अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर रोशनी पैदा फरमाता है। उसे आतन फिर रिज़्क़ी, जो बंदा
नेकी का काम करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में बरकत देता है, उसके रिज़्क़ में अल्लाह तबारक व तआला बरकत देता है। वक़ुव्वतन फिल बदन, और उसके जिस्म को ताकतवर बनाता है। मतलब क्या, अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को गुनाहों से, बीमारियों से दूर करता है। किससे दूर करता है? बीमारियों से अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को दूर करता है। और आखिरी चीज, वह मुहब्बतन फी कुलूबिल खल्क़ी, और सारे लोग उस आदमी को अच्छी निगाह से देखते हैं, सारे लोगों की दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाती है। अब जो बंदा गुनाह करता है उसका चेहरा काला हो जाता है, उसके दिल के अंदर एक सियाह धब्बा और दाग पड़ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को किस्म किस्म की बुराइयों में, गुनाहों में और बीमारियों में मुब्तला करता है। ऐसी ऐसी बीमारी जिसका नाम भी हम नहीं सुने होंगे, वैसी वैसी बीमारियों में लाहक करता है। जब डॉक्टर के पास ले जाएंगे, फला डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, कितने भी बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाओ, वो आदमी लास्ट में आखिर में एक ही कहता है कि इतने हजार लोगों में से, इतने लाख लोगों में से एक ही आदमी को ये बीमारी आती है, उसकी दवा नहीं होती। जो बंदा ज्यादा गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बीमारियों में मुब्तला करता है, किस्म किस्म की बीमारी, ऐसी ऐसी बीमारी जिसका नाम भी हम नहीं सुने होंगे, जिसका नाम भी हम नहीं सुने होंगे, वैसी वैसी बीमारियों में मुब्तला करता है। और जो बंदा गुनाह करता है, ऐसा बंदा, लोग उसको मोहब्बत नहीं करते, लोगों की नजरों से वो आदमी उतर जाता है, लोगों की नजरों से वो आदमी उतर जाता है। तो ये 5 नेकी के फायदे हैं और 5 गुनाहों के नुकसानात हैं, इनको हम पर गौर करने की जरूरत है। हम अपनी बात को यहीं पर खत्म करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हैं कि बारे इलाहा, जब तक हमको जिंदा रख, इस्लाम और ईमान की हालत में जिंदा रख, जब भी हमारा खातिमा हो, खातिमा बिल खैर फरमा। इलाहुल आलमीन, जितने भी मुसलमान भाई परेशान हाल हैं, उन तमाम की परेशानियों और मुसीबतों को तो ही दूर फरमा। जितने भी लोग मुसीबतों में मुब्तला हैं, अल्लाह उनकी मुसीबतों को तो ही दूर फरमा। जितने भी लोग बीमारी में मुब्तला हैं, इलाहुल आलमीन उन तमाम को जल्द अज जल्द शफाए आजिला और कामिला अता फरमा। जो भी दवाएं उन्हें दी जा रही हैं, उन दवाओं के अंदर असर अता फरमा। अल्लाह, हम तमाम लोगों को हर वो काम करने की तौफीक दे जिससे अल्लाह राजी होता हो, और हर उस काम से बचाए जिससे अल्लाह नाराज होता हो। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।